ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ سب کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں اور مختلف موضوعات پر اپنی رائے رکھتے ہیں، لیکن آج کا جو یہ سلسلہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی جو نشست ہے، یہ اس حوالے سے اہم ہے کہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں مخدومہ سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ پاکیزہ البتول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا۔ آج میں اس نشست میں انہی کے متعلق مختصراً تھوڑا سا کلام کرتا ہوں۔ ہماری بساط ہی کیا، ہماری جرت ہی کیا کہ ہم ان کی شان بیان کریں یا ان کے فضائل و مناقب پر بات کریں، کیونکہ ہماری زبان اور ہمارا علم ہے ہی کتنا کہ ہم ایک بے انتہا لا انتہا جس کی کوئی انتہا نہ ہو ایسے سمندر کا ہم کیا تذکرہ کریں کہ جس کا کوئی شمار ہی نہ ہو، جس کی کوئی حدود ہی نہ ہو، اتنے ان کے فضائل اور مناقب ہے۔ مختصراً ان کی سوائے حیات پہلے تھوڑا سا جان لے۔ ان کا جو نام ہے، اسم گرامی ہے، حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رکھا۔ اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کا نام فاطمہ رکھا تاکہ آپ اور آپ کی ذریت جو ہے وہ دوزخ سے بچ جائے۔ آپ کا نام فاطمہ، کیونکہ لغوی اعتبار سے بھی علماء کرام کا کہنا کہ فاطمہ کا معنی ہوتا ہے ایسی شخصیت جو دوزخ سے بہت دور ہو، جہنم سے جو آزاد ہو، جس کا جنتی، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، احترام و ندبن آپ سمجھ لیں کہ جنتی، ٹھیک۔ تو یعنی آپ کا نام میں نے فاطمہ رکھا کیونکہ آپ اور آپ کی ذریت جہنم سے آزاد ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا کہ آپ اور آپ کے چاہنے والے جو آپ کے محب ہیں وہ جہنم سے آزاد ہیں۔ تو اس کے علاوہ جہاں تک آپ کی ولادت کی بات ہے، تو پہلی بات اس بارے میں جو روایات ہیں ان میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے 1 سال، یعنی حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو انہوں نے اعلان نبوت کیا، تو اس سے 1 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں، اس سے 1 سال بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 41 ایئرس تھی۔ کچھ کا کہنا ہے، جن میں حافظ ابن جوزی بھی ہے، ان کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس سمے 35 تھی، 35 سال کی عمر مبارک تھی، یعنی اعلان نبوت سے 5 سال قبل۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ آپ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کی شہزادی اور سب سے چھوٹی شہزادی ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، اور ان میں اگرچہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ چھوٹی کون سی تھی، لیکن اکثر کا یہی ماننا ہے اور اکثر کی رائے یہی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا یہی سب سے چھوٹی شہزادی تھی۔ حالانکہ چھوٹی ہونے کے باوجود عمر مبارک میں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجر مبارکہ میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی پرورش کی۔ بعد میں حضور سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی پرورش کی، اور پھر جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ
उनसे निकाह किया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ने जब हजरत उम्मे सलमा तो उनको सौंपा, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फातिमा बिनते असद के बाद उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को हजरत सईदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा की परवरिश के लिए फिर रखा। तो हालांकि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैं चाहती थी कि आपको अदब सिखाऊं सईदा कायनात को, या आपको मतलब के तौर तरीके से खाऊं, लेकिन मैंने देखा कि आपको मुझसे ज्यादा अदब और मुझसे ज्यादा बेहतर हर तरीके में आपको ज्यादा आता है, यानी मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं जो आपको सिखाऊं, तभी रिवायत में आता है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो शहजादी है, शहजादी कौनैन, शहजादी जन्नत, सईदा कायनात, सईदा निसाइल आलमीन सलामुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु अन्हा, हुजूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इनकी परवरिश की। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो आप ऐसा कह सकते हैं कि उस दौर में मक्का में उन पर वही भी आती थी, तो ये दौर सारा सईदा कायनात ने अपनी मुबारक चश्मों से देखा, उसमें परवरिश पाई। यहाँ तक कि बहुत बार ऐसा भी हुआ कि जुर्रत और शुजात में वो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिफा में भी खड़ी हो गई, क्योंकि मक्का के जो काफिर लोग थे वो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अहले बैत को बड़ी तकलीफें और अजियतें पहुंचाते थे, जो भी मुसलमान होते उनको भी तकलीफ और अजियत पहुंचाते थे। तो इस हवाले से हजरत सईदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा ने एक मिसाली किरदार भी, एक शुजाअत दिखाई। तो इसके बाद हजरत सईदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु अन्हा उनका निकाह बाद में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहू से किया। और रिवायत में यह भी आता है कि बहुत से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से सहाबा ने मतलब ऐसा कहा था, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हमने इसका निकाह हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से किया है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये चहीती और कह सकते हैं कि महबूब और सबसे प्यारी और चहीती शहजादी सईदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का एक हिस्सा है, जैसा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में फरमाया है। इसके अलावा प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपके फजाइल और मनाकिब में कहा कि मैं उससे नाराज हूं जो सईदा कायनात को नाराज करे, और जिससे ये राजी हूं उससे मैं भी राजी हूं। इसके अलावा प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत सईदा कायनात इमाम हसन और हुसैन और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से एक बार फरमाया कि जो आपसे बरसरी पैकार जंग लड़े मैं उससे जंग लड़ूंगा, और जो आपसे सुलह करे मैं उससे सुलह करूंगा। ये भी हदीस में आता है। तो मैंने पहले ही कहा कि हमारी क्या बिसात और क्या हैसियत कि हम उनके फजाइल व मनाकिब बयान कर पाए, ये तो हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन मुख्तसरन उनकी सवाल और उन पर बात कर रहे हैं और उन पर थोड़ा सा उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। तो सईदा कायनात हजरत फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इनकी परवरिश की, और फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का के कुफार से बरसरे मतलब पैकार थे, क्योंकि वो हक की दावत देते थे लेकिन वो सरकश थे, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि सईदा कायनात ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुजाअत से बड़ा दिफा किया। तो इसके हवाले से भी बड़ी रिवायत आई है। बाद में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने की तरफ हिजरत कर चुके, तो रिवायत है कि हजरत सईदा कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दीगर जो अहले बैत है वो उसके बाद हिजरत करके मदीना पहुंचे। हजरत सईदा कायनात और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के जिक्र पे थोड़ा सा आते हैं। तो उनके निकाह के बाद आपका जो निकाह है वो भी बड़ी सादगी से हुआ। तो उसके बाद उनकी जो औलाद है उनमें 3 बेटे हुए, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मुहसिन, जिनमें इमाम मुहसिन जो है वो सगर सिनी में ही विसाल पा गए। और इसी तरह उनकी 3 शहजादियां हुई, हजरत रुकैया, हजरत ज़ैनब और हजरत उम्मे कुलसुम, जिनमें हजरत रुकैया वो भी बचपन में ही उनका भी विसाल हो गया। और जहां तक आपको पता है कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो उनको जहर देकर शहीद किया गया, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको भी करबला के मैदान में बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया। और उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है उनका निकाह जो है हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुआ, जिनसे उनके एक बेटे जैद और एक बेटी रुकैया पैदा हुई। और जो हजरत ज़ैनब है यानी हजरत अली और हजरत सईदा कायनात रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की एक और शहजादी हजरत ज़ैनब, उनका निकाह अब्दुल्लाह बिन जाफर से हुआ।
मुख्तसर उनका तज़किरा और सवाने हयात है। तो उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब विसाल हो जाता है तो ये एक जो गम था ये बड़ा ही, आप ऐसा कह सकते एक भारी भरकम गम था। तो कहा जाता है कि उसके बाद जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो कभी भी सैयदा कायनात कभी भी उसके बाद कभी भी मुस्कुरा कर नहीं दिखी, यानी कभी भी नहीं दिखा कि उन्होंने किसी चीज पर या किसी बात पर कभी मुस्कुराया हो। और यही वजूहत है कि तकरीबन हुजूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो का विसाल है उसके तकरीबन 6 माह बाद 3 रमजान मुबारक में सैयदा कायनात का विसाल हो गया। तो इस हवाले से जहां माह रमजान की ओर है वहां रमजान मुबारक की 3 तारीख हजरत सैयदा कायनात का उर्स या उनका विसाल या उनका दिन भी मनाया जाता है। ये मुख्तसर सा एक तज़किरा आप कह सकते हैं हजरत सैयदा कायनात का हमने आपके सामने रखा। उनकी मुख्तसर सीरत फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर आप देखिए कुरान और सुन्नत बरा पड़ा है। अगर हम भी अपनी बिसात भरी कोशिश करें, अगरचे मैंने पहले ही कहा कि तो मुमकिन नहीं, लेकिन अगर फिर भी अपनी बिसात भरी हम कोशिश करें तो फिर भी दफातर के दफातर उस पर लिखे जा सकते हैं। आप मुख्तसरन ऐसा समझ ले कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम का फैसला है कि अगर उनकी मुमासिल कोई थी तो वो सैयदा कायनात थी। हर तरीके से सीरत हो, सूरत हो, अखलाक हो या जो भी चीज है उनमें अगर कोई इनके मुमासिल पूरा का पूरा था वो सैयदा कायनात थी। आप इसी हवाले से सोच सकते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वो हजरत सैयदा कायनात के पास जाते तो उनका एहतराम करते, और जब वो आपके पास आती तो एहतरामन आप प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होते एहतरामन और उनको बोसा देते उनकी पेशानी पर और उनको बिठाते, उनका एहतराम करते। आप इससे जान जाएंगे कि कितना मकाम ऊंचा है सैयदा कायनात का रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। इंशाअल्लाह जब टाइम मिलेगा तो दीगर जो उनकी जहतें हैं, जैसे उनका एक मिसाली किरदार है, आप ऐसा कह सकते हैं कि आबरूमंदाना किरदार, जुरतमंदाना किरदार, उस पर कभी बात करें। कभी उनका कुरान में मकाम जो है उस पर बात करें। कभी जो अइमा है सहाबा उनके अंदर उनका मकाम, उनकी तारीफ वो बयान करें। कभी उनके हया पर, कभी उनकी शुजात पर, कभी उनकी विलादत के हवाले से जो वाक़ात आए हैं, क्योंकि उनकी विलादत के हवाले से भी बहुत से ऐसे वाक़ात हैं कि जो आप ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरह आपको मुख्तसरन आप ऐसा समझ सकते हैं जिस तरह हम कहते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी मुबारक जिंदगी मौजू से भरी हुई थी, तो इसी तरह हजरत सैयदा कायनात की पूरी जिंदगी करामात से भरी हुई है। चाहे विलादत हो चाहे विसाल हो, पूरा का पूरा वहां तक। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फिर से तौफीक बख्शी तो मुख्तलिफ जहतों से फिर से इंशाअल्लाह हम इस मौजू पर आएंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।